जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ेगा तुम जानते दुटा मेथड्स अच्छी डेप्रिसिएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं. ओके, देयर आर टू मेथड्स ऑफ there are two methods of recording depreciation. Depreciation को record करने पे दीटा मेथड अच्छी. One is when no provision for depreciation account is maintained. When no provision for depreciation account is maintained. Second is when provision for depreciation account is maintained. तो दीटा मेथड अच्छी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने पे. When no provision for depreciation account is maintained. Second is when provision for depreciation account is maintained. When no provision for depreciation account already हमें डिस्कशन कर सारचंती तार एंट्री तार ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एवं तार रिलेटेड क्वेश्चन मध्यम कर सारचंती. एबे हम बुझबा when provision for depreciation account is maintained. तो तार कोन ट्रीटमेंट बा तार एंट्रीज कोन. ओके, तो एबे हम पढिबा when सेकंड पार्ट एटा फर्स्ट पार्ट सरी जाइछि. सेकंड पार्ट हला when provision for depreciation account is maintained. मेन से क्या हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर सकते. ओके, तारा फर्स्ट वन ना फर्स्ट हो जो when an asset is sold, sorry, an asset is purchased. जतलो गोटे asset आमे किनु छंती सेम एंट्री हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नो कला बेले जो when no provision for depreciation account is maintained जहाँ एंट्री हेतला assets किनला बेले में सेम एंट्री पास करला. मेन सेठी एंट्री हो asset account debited to cash account or bank account. बाद में हमें क्रेडिट रे किनु छंती पार्टी अकाउंट जाटो सप्लायर अकाउंट. ओके, सेकंड yellow when an asset is purchased. Second one, now when depreciation is charged. When depreciation is charged or provided. जेतोळे हम से asset ऊपर depreciation charge करछंती बा से asset ऊपर depreciation provide करछंती. ताले एठी कोन एंट्री हबो ना no provision for depreciation account जतोळे मेंटेन करथि तो एंट्री हम कोन करथले ना depreciation account debited to asset account. But in this case, the entry will be depreciation account debited to provision for depreciation account. Provision for depreciation account. Okay, तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे थे कौन सा एसेट्स ऊपर. The entry है depreciation account debited to provision for depreciation account. Clear? Then third is जो depreciation हमें charge कर assets ऊपर that will be transferred to the profit and loss account. When depreciation is charged to profit and loss account. When depreciation is charged or transferred भी कोई बारो is charged to profit and loss account. Depreciation is a loss, so it will be debited to profit and loss account. The entry will be same as in the case of no provision for depreciation account. The entry will be profit and loss account debited profit and
loss account debited to depreciation account. ओके जहाँ एंट्री हम सेठी मारथले एठी मध्ये से एंट्री मारिया से तो एंट्री मारथले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू जो प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट मेंटेन होनथला सेम एंट्री होतला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. अच्छा फर्स्ट में आउथरे तीनटा आउथरे बुझे दूची. फर्स्ट को व्हेन एन एसेट इज परचेज जेतलो गोटे एसेट हम परचेज करछु जहाँ नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कला बेले जहाँ एंट्री थिला एसेट्स किनला बेले जहाँ हमर एंट्री हेते से एंट्री होबा एसेट जो एसेट कुनछ एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश रे कुनछ तो कैश अकाउंट चेक बा ड्राफ्ट माध्यम रे कुनछ तो बैंक अकाउंट यदि बाकी कुनछ तो सप्लायर बा पार्टी अकाउंट जो डेप्रिसिएशन चार्ज कुन एसेट जो किना हला तापर डेप्रिसिएशन जो चार्ज करा जो प्रोवाइड करा होची तो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. Clear? And third is when depreciation is charged to profit and loss account. जतरा में depreciation को transfer करछन at the year end वर्ष शेष रे जतरा profit and loss account बनेबा then depreciation will be transferred to profit and loss account to asset on the profit or net profit of the business. So when depreciation is charged to profit and loss account, then profit and loss account debited to depreciation account. Depreciation is a loss when it is transferred to profit and loss account. The debit balance will be credited and profit and loss account. Okay, so it is profit and loss account debited to depreciation account. Okay, then next entry is Mukul Cook's entry. When an asset is sold जेतबेले गोटे एसेट को हमें बिक्री करछंती तो बिक्री कला बेले कोन है ना अमाउंट रियलाइज होता है पैसा मिलता है. तो फर्स्ट में गोटे गोटे एंट्री मारी फर्स्ट हमें ए रे परिबा बा ए रे कहूची when amount realized when amount formula कहूची for amount realized on sale of asset एसेट को बिक्री करबा द्वारा जो अमाउंट में रियलाइज तार एंट्री कोन ना कैश अकाउंट बा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. जो एसेट का हम बिकले से एसेट्स को जति तो हमें पाइले कैश रियलाइज करले ऑन सेल ऑफ एसेट्स दैट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ सेल प्राइस टू एसेट. ओके देन जेतले कोन से एसेट्स को हमें बिकी था जेते हेइ थाइ कोन ना से एसेट्स ऊपर जति के दिन यूज होता है जो वर्ष से एसेट्स बिक्री होता है जति के दिन यूज होता है तापरे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. तो एथले हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करबा तो सेम एंट्री हबो फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स सोल्ड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स सोल्ड मींस जो वर्ष आमे एसेट बिकिले जदी से वर्ष से एसेट किछि दिन यूज हेछि ताले से एसेट ऊपर डेप्रिसिएशन पड़िबो ताले से एसेट ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करबा डेप्रिसिएशन एंट्री चार्ज कला बेला प्रोवाइड कला बेला जहां एंट्री है से एंट्री हबो मींस डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ओके जहाँ हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कला बेले जहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज कला बेले प्रोवाइड कला बेले जहाँ एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. नाउ द इंपोर्टेंट थिंग इज जो एसेट्स हमें बिक्री करते हैं देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज एन अक्युमुलेटेड बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन. अक्युमुलेटेड मींस प्रत्येक वर्ष में जहाँ जहाँ डेप्रिसिएशन पकेथा बा चार्ज करथवा एसेट ऊपर सेटा ऐड ही जाते दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. इट इज एन अक्युमुलेटेड बैलेंस. त जो एसेट बिक्री हे गला ता ऊपर जो प्रोविजन पड़ा काहे तो दैट विल बी रिटन ऑफ काहे कि ना सपोज मो पाखे गोटे एसेट थिला मतलब एक थोड़ा एग्जांपल दूं तुमको फॉर एग्जांपल ऊपर दीटा एसेट
asset A, asset B, asset A, asset B purchase ହେଇଥିଲା on suppose 1st January 2018, 1st January 2018 ने आपको किना है। सपोज ये थिला 1 लाख रुपीस, ये थिला 50,000 रुपीस। सपोज आपरे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होची 10% on WDV written down है, ओके। आप मतलब 10% डेप्रिसिएशन on WDV अगर मतलब 10% on 1st suppose 31st December 2020, 31st December 2030 asset sold for सपोज asset B को 31st December 2020 रे बिक्री कर दे। सपोज मु आपको 35,000 रे बिक्री, ओके, दैट इज द सेल प्राइस, क्लियर। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर जेबे एसेट किना हैतला, सपोज अकाउंटिंग ईयर हमर क्लोज होची 31st December, ओके, अकाउंटिंग ईयर क्लोज होची 31st December each year, ओके। ताहले फर्स्ट ईयर जो वर्ष एसेट किना हैतला मींस 2008 हमर डेप्रिसिएशन केते हियो। तो फर्स्ट एसेट रो मूल्य केते, कॉस्ट केते गेला एसेट रो, दीटा एसेट रो कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 1,50,000 ए प्लस बी को मिसले। एबे फर्स्ट ईयर हमर डेप्रिसिएशन केते पड़िबो, लेस करबा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, होला, ऑन 2018 in 2018 कहते ना 15, okay, then 1,35,000 that is the value or WDV written down value आज on एक 2019, एक 2019 एबे पुणी लेस वाला डेप्रिसिएशन सपोज at the rate of 10% in 2019 written down value method से कुछ depreciation charge के रहते हैं, okay, on WDV that means it is 13,500. now the value on value by WDV written down value आज on एक कोरिए is कितने गला 1,35,000 minus 13,500, that is 1,21,500. Okay, that is the value of A के 2020. Now, हमें B को जल्दी केवे ना asset is sold on 31st December 2020. Asset B को हमें बिक्री कर दो। Okay. सपोज एक चेंज कर दो, सपोज 31st December 2019 2019 को 35,000 रे सेल करछि। एबे मते को अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन केते ना प्रथम वर्ष रो 15,000 डेप्रिसिएशन पड़छि, सेकंड ईयर 13,500, ताले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हे गेला एते बाटा पर्यंत मींस 1st January 2020 पर्यंत प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन केते हला ना ये 15,000 प्लस 13,500। मनता प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज एन अक्युमुलेटेड बैलेंस, मींस प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन जति होता है ऐड ही जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओके। सो द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जति हम कहबा दैट इज 28,500, क्लियर। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पड़ता है तो सेतले एसेट्स को हम ओरिजिनल कॉस्ट रे देखले था एवं सेतु जो माइनस है था, ये जो माइनस है दैट इज नॉट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन देतले दैट तो ए भले कथा जोटा हम ऑलरेडी कर सकते, ओके। तो हमें
नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन से माने कॉस्ट से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करता हूं डब्ल्यूडी भी बाहर है से डेप्रिसिएशन माइनस एम चलता है बट हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करता हूं तो एठी कोन है 1,50,000 एठी लेस है नॉट डेप्रिसिएशन दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 15,000 तो 1,35,000 हे गला नेक्स्ट ईयर पुनी ओपनिंग बैलेंस जोटा लिखा है से पुनी 1,50,000 लिखा है से 1,35,000 लिखा है सेटा हम परु करी ओके चल आगे एटा बुझता तो एटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के था ना 28,500 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आउथरे कहूची प्रत्येक वर्षर डेप्रिसिएशन को ऐड कर गले ओके दैट इज द अक्युमुलेटेड फिगर मींस अक्युमुलेट जतो हम करथो सेट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 28,500 ओके ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को दिन अछि ना एटा हैला आज हम को दिन एक कोड़ी कहीं ना 18 हमें प्रोविजन डेप्रिसिएशन है 15,000 19 है डेप्रिसिएशन 13,500 टोटल 28,500 हमर डेप्रिसिएशन है टोटल प्रोविजन है कोदना एक कोड़ी ए जो 28,500 जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अछि तादरे 50,000 रो प्रोविजन मध्ये ऐड हे अछि जो एसेट को हमें फर्स्ट 31 डिसेंबर 2009 ने सेल कर दउ छी ओके दैट मींस 28,500 50,000 जो एसेट को हमें सेल करछंती 31 डिसेंबर 2009 ने तार प्रोविजन मध्ये ऐड हे अछि ओके एबे नेक्स्ट ईयर जेतले हम डेप्रिसिएशन पकेबी नेक्स्ट ईयर मींस 2020 रे सेतबेले जो एसेट हमर सेल हे गला ता ऊपर अब डेप्रिसिएशन पड़िबो की कहना एसेट जदी एग्जिस्ट करूनी एसेट नाही तो ता पर डेप्रिसिएशन पड़िबोनी बट हमर हेछि कोन ना ऑलरेडी आधरे जो एसेट बिक्री हे गला तार प्रोविजन ऐड हे अछि ओके नेक्स्ट ईयर तला हम कांग्रेस 2020 रे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करबा ओके तो सेतबेले कोन हबो ना आधरे जो एसेटटा बिक्री हे गला जो एसेटटा बिक्री है तार प्रोविजन एथुरु माइनस हो मींस हमर एथरे कोन रहबो ना जो एसेट बिक्री हेनी केवल तार प्रोविजन एठी रहबो जो एसेट बिक्री है तार प्रोविजन एठी माइनस हे जबो ओके दैट मींस मोटी तुम कहबी जे 2020 रे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करे तो कहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करे ना 1 लाख ऊपर आर रिटर्न डाउन वैल्यू जहां थिबो तुमर 1/1/2020 रे तार ऊपर चार्ज हो काहे ना 1/1/2020 रे ए एसेट आउ नाही एसेट बी नाही ओके तो एठी कोन हबो तो फर्स्ट हमको कैलकुलेशन करिया पड़िबो जो एसेट बिक्री हे गला ता ऊपर प्रोविजनिंग केते हिची अच्छा 50,000 रो फर्स्ट ईयर प्रोविजनिंग केते हिथिबो ना 5,000 क्लियर सेकंड ईयर प्रोविजनिंग केते हिथिबो अरेला 45,000 सेकंड ईयर 4,500 दैट मींस ये फर्स्ट ईयर रो 5,000 सेकंड ईयर 4,500 मींस जो 9,500 हेची ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर रो डेप्रिसिएशन 5,000 सेकंड ईयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस इट इज एन अक्युमुलेटेड फिगर जते वर्ष पर्यंत एसेट ऊपर डेप्रिसिएशन पड़तो सबरे मिसी जाय है तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 5,000 सेकंड ईयर 4,500 टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज 9,500 कहां ऊपर ना जो एसेट बिक्री है ओके एटा हम बाहर करिया जो एसेट हमर बिक्री हेइले ता प्रोविजन केते को दिन ना 1/1/20 रे ए जो 1/1/20 रे 28,500 हमर प्रोविजन करा है छी आधरे ए एसेट रो प्रोविजन मींस 9,500 ऑलरेडी मिसी के छी ओके तेनु करी के कोन हिथाय ना हमको एटाको माइनस करियो 9,500 28,500 रो माइनस करिया पड़िबो दैट मींस हमर केते रहला 19,000 ए जोटा हला दैट इज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये होची तमरो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आज ऑन 1/1/20 ऑन अनसोल्ड एसेट्स जो एसेट एटा होची कोन ना सोल्ड अनसोल्ड दिटा मिसी 28,500 होची सोल्ड एसेट जो बिक्री हेला तार 9,500 प्लस जेटा बिक्री हेनी तार 19,000 मिसी के 28,500 होची बट जेहेतु एसेट बिक्री हे गला ता पर जो प्रोविजन अछि दैट विल बी रिटन ऑफ मींस ताको हमको प्रोविजन नो माइनस करे अछि सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आज अन 1/1/2020 कोडे केते हला ना 19 एटा कोन ना केवल आर प्रोविजन
ओके तो ये जो माइनस करिया पे हमको कोन एंट्री मारे पड़ो मींस व्हेन एन एसेट इज सोल्ड जब हम सेल करछन तो फर्स्ट तो केते पाइडा में एंट्री मारले सेकंड से जो एसेट जति दिन यूज हिची से वर्ष जो वर्ष हम एसेट को सेल करछन तार एंट्री मारले एबे इंपोर्टेंट हला कोन ना से एसेट ऊपर जति की प्रोविजनिंग हेइथिबो मूल एसेट किना हवा दिन ठरो जेबे बिक्री हला जो दिन बिक्री हला से पर्यंत जहा जहा प्रोविजनिंग हेइथिबो ओके साधारणतः जो दिन तो आम नबानी जो फास्ट से वर्षर प्रथम दिन पर्यंत माने फास्ट डे ऑफ द ईयर पर्यंत जहाँ जहाँ प्रोविजनिंग हेतिबो माने जो वर्ष बिक्री हला सपोज 2020 रे बिक्री होची तो 1 जनवरी 1 रे केते दापर प्रोविजनिंग हेतिबो ओके तो जो एसेट बिक्रीला तार प्रोविजनिंग हम टोटल प्रोविजन माइनस करबा तो भारीबो कोन ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड एसेट ओके तो आर एंट्री कौन हो आर एंट्री कौन हो जतले में जो एसेट बिक्री हे गला तार प्रोविजन को हम तो राइट ऑफ करछन बा ट्रांसफर करछन कोठी ना एसेट अकाउंट को ट्रांसफर करछन ओके सो ए बी जाइतला बे सी व्हेन प्रोविजन फॉर depreciation on the asset sold जो asset बिक्री हैला तापर जो provision for depreciation is transferred to asset account जेतरा हमको asset account को ट्रांसफर करछन बा is written तो हम आपको राइट एंट्री कौन हो ना provision for depreciation is क्रेडिट बैलेंस हम देखो राइट अप करबा ट्रांसफर करे एसेट अकाउंट तो एंट्री हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ओके सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कोन ना दिस इज द प्रोविजन ऑन द एसेट सोल्ड ओके मैं ब्रैकेट रेट हम लिख दूची with the amount of provision on the asset sold जो asset का बिक्री हैला तार ऊपर टोटल जति की प्रोविजनिंग कराय थिबो बा डेप्रिसिएशन चार्ज थिबो ओके ताको हमें डेबिट करले ओके डी एसेट जो बिक्री है आइदर प्रॉफिट है बा लॉस ओके जदी हमर प्रॉफिट होछ फॉर प्रॉफिट जहां हमें एंट्री मारू जनरली से एंट्री मारा प्रॉफिट पर यहां हमें कौन एंट्री मारतो ना एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके जति टंका हमें प्रॉफिट गले विथ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जति हमर प्रॉफिट हला सेति हमर एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बा हमर लॉस हे पारे ई फॉर लॉस जति हमर लॉस हला सेम एंट्री मारा हबो जो एंट्री तमे अगुल मध्ये मारथरो सेम एंट्री मारा हबो मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट क्लियर तो ये रहा प्रॉफिट है ये है यदि लॉस है ये है तुम्हारा अकाउंटिंग एंट्री व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड फर्स्ट एंट्री मारला में कोन ना जत्तो बळे कोन से एसेट किना हेता तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक और सप्लायर अकाउंट बिक्री किना हेते से एसेट जो किना हेता तार तो डेप्रिसिएशन चार्ज हेता तो एंट्री हेता डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो डेप्रिसिएशन चार्ज हेता ताको तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करता एट द ईयर एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट से तो एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट तापर जति कोन से एसेट्स को हम बिक्री करछन तो विभिन्न सिचुएशन पर केस अराइज हेता फर्स्ट हम बिक्री करते पाइले तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हेते टू एसेट अकाउंट जो एसेट बिक्रीले से एसेट से वर्ष केते दिन यूज होछि ओके जति दिन यूज होछि सेति दिन डेप्रिसिएशन तो सेठी मते सेम एंट्री होबा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो एसेट बिक्री करे देले ता ऊपर जति की प्रोविजनिंग करा हेछि जेहेतु हमर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ने कोन हेथे ना अकुमुलेटेड ही जाय छै जेबेठु एसेट किना हेथे
एवं जतटा एसेट किना हेते सब एसेट रो डेप्रिसिएशन को अकुमुलेट करा हेते प्रत्येक वर्ष मिसी एसेट बिक्री हे गेला परे आउ से एसेट ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर परिबा नाही ओके बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ने कोन हेते ना जो एसेट जिन एग्जांपल देले एसेट ए रो मध्ये डेप्रिसिएशन मिसी किथिला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मिसी किथिला एसेट बी रो मध्ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 28505 हमर थिला टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आधरे एसेट ए रो मध्ये थिला प्लस बी रो मध्ये ओके बट बी एसेट बी जो सेल हे गला आफ्टर जो नेक्स्ट ईयर तो 2020 एग्जांपल दिया था 2020 रे हमें प्रिपेयर करबा अकाउंट्स तो आफ्टर जो प्रोविजनिंग थिला 9500 ना कोन तो ये जो बी एसेट रो प्रोविजन एटा को माइनस कर दिया जो तो 19000 जो रहला ये होची ए रो एसेट ए रो प्रोविजन प्रोटेक्शन ओके काहे कि ना एसेट बिक्री हे गला तो एसेट बिक्री रहला तापर डेप्रिसिएशन को एग्जिस्ट कोठो आसी एसेट एग्जिस्ट करिवनी तो डेप्रिसिएशन ओके सो तापर जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन प्रोटेक्शन थिला ताको हमें सेटो ट्रांसफर कर देला एसेट अकाउंट को देन हम रहला कोन ना केवल ए जोटा बिक्री हे तारो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 19000 ओके तो तार एंट्री कोन हमर हो तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एसेट सोल्ड जो एसेट बिक्री हेला तार जो प्रोविजन है ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट ट्रांसफर कर तुम जान प्रोविजन फॉर depreciation is a credit balance the transfer of the debit area provision for depreciation account debited to asset account and the next is जदे हम प्रॉफिट करछंती assets को बिकी की प्रॉफिट करछंती then asset account debited to profit and loss account जदे हम लॉस करछंती profit and loss account debited to asset account okay एबे depreciation when no provision for depreciation account is maintained when provision for depreciation account maintained जदे हम करथो सेतले बैलेंस शीट रे केमे ट्रीटमेंट करथो बा हमर लेजर अकाउंट रे ट्रीटमेंट केमे ओके तो डेटा हम तुमको अलग अलग बुझुछ सपोज हम गोटे एसेट परचेज करछन गोटे एग्जांपल दूची दिस एन एग्जांपल गोटे एसेट परचेज हिची on 1st January 2017 for rupees 1 okay a rate of depreciation is 10% on WDV written down here clear एबे आमे सपोज फॉर 3 years पर्यंत हमारा ट्रीटमेंट करना फॉर 3 years ओके तो दीटा मु अलग अलग करछि कंपेयर करछि फर्स्ट होछि कोन व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड जो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन करू नाहंती next when provision for depreciation account is maintained जेता हम provision for depreciation account maintain करछी ओके तो first year means on value बामदी 2017 रो बैलेंस शीट तैयारी करे 2017 रो बैलेंस शीट तैयारी करे बैलेंस शीट तैयारी करे ताले 2017 मु कोन लिखिबी ना एसेट रो मूल्य दैट इज द एसेट साइड दैट इज द लायबिलिटी साइड एसेट मु केते पकेब ना 1 लाख less करबेटी depreciation at the rate of 10% that is 10,000 तो इनर कॉलम रे केते रहला ना 90,000 ओके 2017 बैलेंस शीट जेतले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करछन
फर्स्ट ईयर से एसेट अकाउंट केते एसेट हमर केते रहना ना 1 लाख एटी कोन लेखा हो ना लेस हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट डेप्रिसिएशन एटी हम खाली डेप्रिसिएशन लेते कारण एटा प्रोविजन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करू नांती बट एटी हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करू तो एटी एसेट का 1 लाख लेस ला डेप्रिसिएशन 10% तो 90000 एटी एसेट 1 लाख तो लेस रिवाइटी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिमेंबर एटी हम लिखा ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10% means 10,000 90,000 रहेगा सेम फर्स्ट ईयर जो वर्ष एसेट किना था एबे जदि मो 2018 रो बैलेंस शीट बनउछ 2018 ना बैलेंस शीट बनउछ कोई नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड से क्षेत्र में एबे लिखबा एसेट केते ना एसेट में बुक वैल्यू लिखबा रिटन डाउन वैल्यू लिखा जोटा कुछ 90000 ओके एथरो लेस हो डेप्रिसिएशन at the rate of 10% that is 9,000 now it is 81,000 okay but when provision for depreciation account is maintained then 2018 day balance sheet prepare करिबा then that is the asset side is the liability side तो asset हम एठी केते लिखबा ना 1 लाख लिखबा एठी 90,000 लिखा हो एठी कोन लिखा हो ना asset रो मिला में 1 लाख लिखा मींस तार कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट सेटा लिखा हैला ओके तो एथरो कोन हो ना लेस हो एथरो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन केते ना प्रथम वर्ष प्रोविजनिंग केते हेला ना 10,000 सेकंड ईयर में केते टका आपरे डेप्रिसिएशन पकेबा 90,000 रिटन डाउन वैल्यू क्वेश्चन को रिटन डाउन वैल्यू रहउची रिटन डाउन वैल्यू मींस डेप्रिसिएशन पडिसला परे जो वैल्यू रहबो ताले सेकंड ईयर रे डेप्रिसिएशन पडिसला परे वैल्यू केते अछि 90,000 तो 90,000 तो 10% केते ना 9,000 बट हमर प्रोविजनिंग केते हेजिवो ना माने 2017 ना 10,000 प्लस 2019 18 ना 9,000 टोटल 19,000 प्रोविजनिंग दिया देखि कोन है प्रथम वर्ष 10,000 सेकंड ईयर 9,000 ए दिटा को मिसे दिया अकुमुलेट कर दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को होची अकुमुलेटेड फिगर प्रत्येक वर्ष रा डेप्रिसिएशन की अकुमुलेट कराया था ओके तो एठी केते रहला 91,000 ये मतलब 81,000 ये मतलब 81,000 बट डिफरेंस कोन ना ए क्षेत्र जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन करू नांती सेठी हमें एसेट को रिटन डाउन वैल्यू बा बुक वैल्यू रे देखु एवं सेतु डेप्रिसिएशन माइनस होची जहा हम रिटन डाउन वैल्यू अछि ता पर 10% बट जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करछन तो बैलेंस शीट रे हम एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट रे देखुछन ओके एठी हम बुक वैल्यू मींस रिटन डाउन वैल्यू देखुछन एठी ओरिजिनल कॉस्ट रे देखुछन तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होची ओके एवं एठी माइनस कोन से डेप्रिसिएशन माइनस होतला एठी कोन से ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होतला केते हबो ना फर्स्ट ईयर 10,000 बट एंड सेकंड ईयर मींस 2018 नो केते ना 9,000 केमि केला ना तमरे जानछो रिटन डाउन वैल्यू देछि 10% तो फर्स्ट ईयर तमरो 1 लाख एसेट किनि थिला त डेप्रिसिएशन माइनस ला पर जो वैल्यू थाय देखंती रिटन डाउन वैल्यू तो माइनस हेला केते 10,000 तो 90,000 रिटन डाउन वैल्यू तार 10% 9,000 तो 10,000 plus 9,000 is 19,000 ओके एबे सपोज हमें यदि 2019 ने बैलेंस शीट बनेबा ओके तले एटी एसेट आना के देखेबा ना एटी देखबा 81,000 ओके एवं सेथुरो लेस हबो डेप्रिसिएशन at the rate of 10% that is 8,100 ओके तले केते गेला 81,000 minus 8,100 that is 72,900 okay एठी अगर हम 2019 रे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होच बैलेंस शीट बनेबा तरी एसेट केते लेखा हो नाटी एसेट लेखा हो से 1 लाख मींस ओरिजिनल कॉस्ट ओके सेथुर लेस हो ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन केते माइनस हो
ना फर्स्ट ईयर हमर डेप्रिसिएशन केते हेता 10000 सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन केते पड़छ हमर 9000 थर्ड ईयर केते 8100 बाद में बेटी 19000 सेकंड ईयर थिला एबे पड़ला अपने 8100 ओके त 19000 प्लस 8100 टोटल डेप्रिसिएशन थिला 27001 ओके माइनस कर देले केते रहला ना 72900 बुझ परछो कंपेयर करके देखो मेन डिफरेंस होची कोन जेतले हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करू नाहंती एसेट को बुक वैल्यू देखु छी न सेथरे डेप्रिसिएशन माइनस कराछि बट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करछन तले बैलेंस शीट एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट देखु छी सेथु कोन माइनस ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होची प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कोन ना प्रत्येक वर्षर डेप्रिसिएशन ना अकोमोडेटेड फिगर प्रथम वर्षर डेप्रिसिएशन 10000 ए देखि देबा प्रथम वर्षर डेप्रिसिएशन 10000 तो 10000 माइनस है सेकंड ईयर कोन हबो ना प्रथम वर्षर डेप्रिसिएशन प्लस सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन बीटा एठी माइनस हो मींस प्रथम वर्षर 10000 सेकंड ईयर 9000 टोटल 19 तो 19000 माइनस बट एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट देखले बैलेंस शीट 2019 रे तो एसेट बैलेंस शीट बनेबा तो एसेट के देखाबो ना 1 लाख देखाबो से ओरिजिनल कॉस्ट देखाबो लेस कोन अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन केते ना फर्स्ट ईयर रो 10000 प्लस सेकंड ईयर रो 9000 प्लस थर्ड ईयर रो 8100 ओके मींस 27100 तो तुम रहा वैल्यू केते ना 72 ओके सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन ओके तो एथरा में कोन जानिले एथरा में जानिले जदि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनौछन बा मेंटेन करूछंती देन इन दैट केस द एसेट विल बी शोन इन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट काहे की ना जदि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करछन व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड जदि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन करछन तो सबले हम एंट्री कोन करछन डेप्रिसिएशन कोन चार्ज करछन ना एंट्री होची जो एंट्री तुम तळे बुझौथली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंट्री के आउथर जो एंट्री तुम स्तर कहथली जदि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करछंती एसेट ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कला में एंट्री को पहुंचन ना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बट जदि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करू नाहंती सेतला में तो डेप्रिसिएशन चार्ज को एंट्री कोन करथु ना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट एंट्री को बराबर when no provision for depreciation account is maintained when provision for depreciation account is maintained जेतले में depreciation charge करछथि जेतले provision for depreciation account maintain होनी तो depreciation charge को the depreciation account debited to asset account depreciation is loss is debit balance का debit है asset is debit balance but depreciation पड़िबा द्वारा asset से मूल्य कमिला तेन पर क्रेडिट हे गला मींस एठी कोन होछि ना depreciation पड़िबा द्वारा हमर asset कम होछि वैल्यू कम होछि मींस हम एत देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे देखौ छथि बा बैलेंस शीट रे शो करछन सेतरा एसेट्स को माइनस करके शो करछन जो तुम एग्जांपल ले कहत ओके मींस एसेट अकाउंट हम सबरे बुक वैल्यू रिटन डाउन ले देखे देखे आसु बट ये एंट्री रे एसेट क्रेडिट हे छि की मींस एसेट रो मूल्य एठी कमिनी सपोज मोटे एसेट किनथि लाख टका डेप्रिसिएशन हेला 10000 एसेट किनला बेला एसेट अकाउंट डेबिट हेला 1 लाख मोय पे डेप्रिसिएशन पकई सपोज 10% that is 10,000 एटी मध्ये पडला 10,000 त्यसला मी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करछु बट एटी कोन हैला ना एसेट डेबिट हेतला किनला बेले मानला क्रेडिट हेगला 10,000 मींस एसेट रो वैल्यू केतरा हैला 90,000 बट एटी एसेट किनला बेले मेंटेन करतले एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख बट ए एंट्री मारला बेले एसेट अकाउंट क्रेडिट हेछि की क्रेडिट है दैट मींस एसेट सही ओरिजिनल कॉस्ट रहला मींस 1 लाख मींस बैलेंस शीट का बनउ छ त एसेट कम से कम देखौ छनी ना 1 लाख देखेबा बट एठी कोन हबो ना फर्स्ट ईयर तो उभय जकर सेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट ईयर इन द सेंस जो वर्ष तुम एसेट किनु छ से वर्ष प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करो वा ना करो सेम हिते मींस एठी फर्स्ट ईयर जदि कहबी त फर्स्ट ईयर मु एठी भी 1 लाख को 10,000 माइनस करके 90,000 देखी
जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होनी सेठी मध्ये मुसे 1 लाख रु 10000 माइनस करके 90000 देखि जदी गोटे एसेट्स को लक्ष टका किनि थाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ओके बट नेक्स्ट ईयर येला फर्स्ट ईयर जो बस एसेट किना है बट नेक्स्ट ईयर कोन हला नेक्स्ट ईयर जो एंट्री मारली आदर मोर एसेट 10000 कम गया दैट मींस नेक्स्ट ईयर मुझे तो देखिबी त एसेट देखिबी 90000 कना 10000 मोर एसेट अकाउंट क्रेडिट हेगा एवं सेथु माइनस करबी डेप्रिसिएशन 9000 पहला के 81000 बट एठी कोन छै ना डेप्रिसिएशन चार्ज करिया द्वारा एसेट क्रेडिट होछि कि एसेट क्रेडिट होनी मींस एसेट से लाख टका रहउछि ताले एठी कोन होछि ना लाख टका देखउछि एसेट बट माइनस कोन होछि ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एठी डेप्रिसिएशन माइनस होछि एठी होछि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओके तो एठी गला माइनस वाला डेप्रिसिएशन होछि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कोन ना प्रत्येक वर्ष रो डेप्रिसिएशन ना अक्युमुलेटेड फिगर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन केते पड़ला 10000 सेकंड ईयर केते 9000 टोटल 19000 माइनस ये मध्ये रहै आसी 81000 थर्ड ईयर मध्ये से एठी के देखेबा 1 लाख बट एठी के देखाबो 81000 81000 टू 10% मींस 8100 माइनस हो बट एठी कोन हो ना तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपन मेंटेन करछथि तो ओरिजिनल कॉस्ट देखा 1 लाख बट माइनस हो ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन केते ना ये 10000 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9000 बाम कर पे 2 वर्ष रो फर्स्ट सेकंड मिस 19000 और थर्ड ईयर 8100 मींस 27000 माइनस 100 माइनस ऑफ करे थर्ड ईयर तो मैं बैलेंस शीट बनला ओके सो ये होची मेन डिफरेंस क्लियर डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस हम एटी कोन जानले जे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होची तळे एसेट रो मूल्य कम नै बा एसेट को हमें कम नै ओके तेन कोई एसेट्स को मेटी ओरिजिनल कॉस्ट देखो छथि ओके तो कोन कहूची थ्योरेटिकली बा नोट्स इंपोर्टेंट नोट कहूची in the case or in the method when provision for depreciation account is maintained जो मेथड में provision for depreciation account maintain करता हूं the asset account is not affected asset account affect है ना था प्रभावित है but when provision for depreciation account is not maintained so तो asset account प्रभावित होता है क्योंकि हम किने वाला asset account को लाख टका डेबिट करथले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते 10000 क्रेडिट करते तो asset account ऑटोमेटिकली 10000 कम गया बट ये जगह तो प्रोविजन को पूछे एसेट अकाउंट क्रेडिट है सो इन दिस केस बट इन दिस मेथड एसेट अकाउंट इज नॉट affected and the value of asset appears in the ledger and the balance sheet in the original cost एवं asset रो वैल्यू बैलेंस शीट बा लेजर अकाउंट रे ओरिजिनल कॉस्ट रहता है जब हम बैलेंस शीट बनेबा तले एठी ओरिजिनल कॉस्ट रहबो मींस प्रथम वर्ष मध्ये से लाख टका सेकंड ईयर मध्ये लाख बट एठी कोन होची प्रथम वर्ष तो सेम रहेगा but second year 90000 okay second question the amount of depreciation written off is accumulated to provision for depreciation account जति के टका में depreciation write off करछंती प्रत्येक वर्ष that will be accumulated मतलब मिसी जाता है in provision for depreciation account जरा provision for depreciation account रे accumulate होता है मींस प्रत्येक वर्ष में जति के डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करछन बा चार्ज करछंती दैट विल बी accumulated मिसी जे पर्यंत हम बने जाते प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन आड़े तो प्रथम एठी कोन हला 19000 को केम दिला ना प्रथम वर्ष रो डेप्रिसिएशन 10000 सेकंड ईयर 9000 टोटल मिसी की 19 तो accumulate हे गला ओके प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन ता accumulate हे गला थर्ड ईयर जदी करिया हमें तो 8100 ऊपर डेप्रिसिएशन देते ना 8100 तो थर्ड ईयर इज 10000 प्लस 9000 प्लस 8100 मींस 27100 accumulated रहता है सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ इज accumulated in provision for depreciation account next when the asset is sold or discarded or exchanged for a new asset जदि हम asset को सेल करछंती बा डिस्पोज बा एक्सचेंज करछंती गोटे asset आउट एसेट किले पुना एसेट को एक्सचेंज कर देले द टोटल accumulated depreciation for that asset से एसेट ऊपर जति की accumulated depreciation हेता है माने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हेता है इज ट्रांसफर टू दैट एसेट अकाउंट सेटा एसेट अकाउंट को ट्रांसफर होता है जो एंट्री में तुम मार्क से तो है जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट रिलेटेड टू एसेट अकाउंट मींस जो एसेट बिक्री हेगला तार ऊपर जति की accumulated depreciation बा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन that will be transferred to
asset account. Thus the balance in the provision for depreciation account always shows the accumulated depreciation on the asset which is in use or not sold. Means provision for depreciation account रे जो था provision for depreciation एटी 19,000 10,000 इतरे को वैल्यू टा था ना कहार प्रोविजन था ना जो एसेट बिक्री हे नाही बा जो एसेट्स को हमें सेल करी नांती सेही एसेट रो प्रोविजन एठी आडी ओके जेटा हम सेता पूर्व एग्जांपल दे कोथली जे 28,500 रु 9,500 माइनस हला काहे कि 9,500 माइनस हला ना एसेट ए और बी दीटा एसेट थिला तो बी बिक्री हेला एबे ए रहिला तो प्रोविजन जोटा व्यवस्था केवल ए रहइबो काना जो एसेट बिक्री हेला ता ऊपर डेप्रिसिएशन हे न था ओके सो बी रो जो प्रोविजनिंग हेतला that will be deducted from the total provision of A and B. A and B रो total provision नु provision of B जो एसेट बिक्री हेला that will be deducted तले रहिबो कोटा A और B कोन टोटल तादुर जो एसेट बिक्री हेला माने B रो प्रोविजन माइनस हे गले रहिला कोटा जो प्रोविजन जो एसेट बिक्री हेनी तार प्रोविजन ओके तो सेति में मतलब तम से एंट्री को हेतला जे प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट in the balance sheet the asset account is shown at its original cost देखो हम बैलेंस शीट पूर्व मध्यम करी तुम एग्जांपल बुझौथि जे बैलेंस शीट रे प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट जदि हम मेंटेन करछंती तले एसेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट रे दिखाई थाए एंड सेथिरु प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस लेस है ओके सो ये हो जे तमरो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आर जो क्वेश्चन अछि दीटा क्वेश्चन अछि तुम बहरे क्वेश्चन नंबर 22 and 23 ओके तो से दीटा क्वेश्चन को मु सॉल्व कर देबी तापर किछि क्वेश्चन देबी तो मु करे प्रोविजन ऊपर करला परे हमर चैप्टर ओके